افسوس کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے. یہاں رات گزارتے تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ اب کراچی کی راتیں بے روپ اور ویران نہیں ہوتی. نک بولا. وہ فکریں میرے لیے ناقابل برداشت تھے. ان کے باتوں سے طنز اور تضحیق کا اظہار ہو رہا تھا. وہ خوش تھے کہ ان کے گھروں میں جنم لینے والی ہر قسم کی بے روی پاکستان معاشرے میں بھی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. مگر اس وقت میں ان سے کسی تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ ان کا انداز طنزیہ ضرور تھا، مگر جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ حقائق سے دور نہیں تھا، اور سچ بات پر اشتعال کا مظاہرہ بدمزگی کا سبب بن سکتا تھا. تم نے مجھے اسلحے کی نال پر کیوں لیا تھا؟ میں نے غصے اور جھنجھلاہٹ کو چھپانے کے لیے وہ تلخ سوال کر ڈالا. میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. دھوکے سے بلا کر تم کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہو. اپنے طور پر تم میری گرد بھی نہیں پا سکو گے. میں اپنے انداز میں کام کرتا ہوں تو دشمن کی کسی امکانی کارروائی سے غافل نہیں رہتا. کوئی دوستی کی آڑ میں دغا دے بیٹھے تو اس کا علاج ناممکن ہے. اسپائی وار میں یہی ہوتا ہے. اس نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی. ایک طرف ملاپ اور دوستی کی بات کر رہے ہو اور دوسری طرف اسپائی وار کی دھمکی دے رہے ہو. پاکستان میں ہم ایس ٹی ایف کو امریکی مفادات کا اولین دشمن تصور کرتے ہیں. اس نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا. جب تک ایس ٹی ایف سے وفاداری کا دم بھرتے رہو گے تم سے ہماری لڑائی جاری رہے گی. دشمن کی آستینوں میں سانپ پالنا اسپائی وار کا بنیادی اصول ہوتا ہے. یعنی تم مجھے ایس ٹی ایف کی آستین کا سانپ بنانا چاہتے ہو؟ میں نے تڑپ کر ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی. بار بار میری بات مت کاٹو. اس کا لہجہ تحکم آمیز ہو گیا. ایس ٹی ایف کو کوئی نقصان پہنچانے سے زیادہ ہمیں اپنی قوت مجتمع کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ہماری فارمیشن کمزور پڑ رہی ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے تم کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن تم اپنی جگہ اڑے ہوئے ہو. میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم اپنی ضد کی وجہ سے ہمارے کسی کام نہ آ سکے تو پھر شاید ایس ٹی ایف کے لیے بھی کسی کام کے نہ رہو گے. یعنی تم میری آستین کے کسی سانپ سے مجھے ڈسوا دو گے؟ میں نے اس کی کھلی دھمکی پر حیرت اور بے یقینی سے پوچھا. جس طرح سوبراج کا معاملہ تم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اندھیرے میں اس کی چمکتی ہوئی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں. اس کی آواز دوبارہ دھیمی اور پرسکون ہو گئی. وہ کہہ رہا تھا، ہم پرائی زمین پر بہت محتاط رہتے ہیں اور ہر قیمت پر مقامی قانون کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیڑے کام نکالنے کے لیے اپنے مقامی ایجنٹوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ برا وقت آئے تو مصیبت انہی کو بھگتنا پڑے. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. اس بار نک نے اپنے افسر کو سہارا دیا. کوئی آدمی مشکل میں گھر جائے تو ہم پس پردہ رہ کر اس کی پوری مدد کرتے ہیں. کیا تم کو اندازہ ہے کہ تمہاری اس دھمکی کے نتیجے میں ڈینی والی ڈیل سے انکار کر سکتا ہوں؟ قدر توقف کے بعد میں نے ان دونوں سے پوچھا. کر دو. سوبراج کو بینکاک میں روک دیا جائے گا اور یہاں ایک ایسا کھیل شروع ہو جائے گا جو ابھی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اس کی آواز بدستور دھیمی اور بیانیہ رہی. اس نے میری جوابی دھمکی پر کسی اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. سوبراج کو اپنی ساکھ کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہ تمہارا غدار ہے. میری نظروں میں وہ اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے کہ تھائی لینڈ میں بیٹھ کر پاکستان کے کسی بھی معاملے پر اثر انداز ہو سکے. اسے زندہ رکھ کر تم اپنی آستین میں ایک زہریلا ناگ پال لو گے. نک کو میں کسی حال میں بھی یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا کہ سوبراج نے کل ہی جہانگیر کو اس کے گھر سے اٹھانے کی کوشش تھی، جس کے نتیجے میں اس کے ایک اہم آدمی ہمارے ہتھے چڑھ گیا تھا. لیکن سوبراج کے ساتھ ہمارے کیا معاملات طے پائے وہ ایک الگ کہانی تھی. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ باتیں غیر ضروری ہیں. نک نے بات بگڑنے کے خوف سے اضطراری انداز میں دخل اندازی کرتے ہوئے اپنے افسر سے کہا. کرنل داور ہماری بات نہیں مانتا تو نہ مانے. میں بہت جلد کوئی اور آدمی تلاش کر لوں گا. اس وقت ہمیں اپنی گفتگو کو ڈینی اور سوبراج تک محدود رکھنا چاہیے. میں نے نک کے الفاظ میں چھپی ہوئی کمزوری بھانپ لی اور تیزی سے کہا. الفاظ ذہن میں چکراتے رہتے ہیں تو صرف نیت بنے رہتے ہیں جس کا حال کوئی نہیں جان سکتا. وہی الفاظ زبان پر آ جائیں تو عزم اور ارادہ بن جاتے ہیں. تم دونوں کی دھمکیوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی. نک کے افسر نے وضاحت کی. فراغ دلی سے کام لے کر تمہیں ان حقائق سے آگاہ کیا جو آئندہ رونما ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک امکان یہ ہے کہ ابھی تمہارے پیش کیے ہوئے نمونے کے مطابق مجھے طاقت کے زور پر اغوا کر لیا جائے یا شاید مار بھی دیا جائے. میں نے تن سے پوچھا. ایجنسیوں کے کھیل میں تم اناڑی نہیں ہو، پرانے کھلاڑی ہو، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اسپائی وار کا لفظ استعمال کیا ہے. تم جانتے ہو کہ ان لڑائیوں میں کسی بھی لغزش یا غلطی کے ازالے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. غلطی سر زد ہوتے ہی گردن کٹ جاتی ہے یا دل میں سوراخ ہو جاتا ہے. تمہارے ساتھ کسی بھی وقت کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس میں میرا یا نک کا کوئی ہاتھ ہو. یہ کام کوئی بھی کر گزرے گا.
शायद वो मुझे यह जता कर खौफजदा करना चाह रहा था कि वाशिंगटन और वर्जीनिया में होने वाले फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए आलमगीर सतह पर सैकड़ों नादीदा हाथ हरकत में आ जाते हैं और इनमें से जिसका दाव चल जाए वो दूसरों पर सबकत ले जाता है। मुझे किसी बच्चे की तरह बढ़ाने की कोशिश मत करो, मैंने बेरुखी से कहा। ये सब बातें बेकार हैं। मैंने जिस पेशे की तरबियत हासिल की है इसमें हर शख्स अपना सर हथेली पर लिए फिरता है। मुझे अपनी जान इतनी ज्यादा अजीज होती तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने ना होता। मैंने उसे दबाव में लाने के लिए धनिस्ता मगर बज़ाहिर इस तरारी अंदाज में अपनी रिस्ट वाच पर नजर डाली और अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, वक्त कम है, जल्दी बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। वो होंठ भींचे चंद सानियों तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, वो अगले 1-2 रोज में कराची आ जाएगा। क्या तुम मुझे उसकी वापसी की इत्तला दोगे? मैंने निक से सवाल किया। सोबराज कोई गैर मारूफ आदमी नहीं है, निक के साथी ने कहा। उसकी अचानक रवानगी को उसके मुखालिफिन ने फरार से मंसूब किया हुआ है। जब तक यह स्कैंडल खत्म नहीं होता वो अखबार वालों की तवज्जो का मरकज बना रहेगा। उसके आने की बल्कि उसी के साथ जाने की खबर भी तुम्हें अखबारात से मिल जाएगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उसे अपने हाथों से कैफर किरदार को पहुंचाना चाहूंगा। सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो सकता। वो हमारा गद्दार और मुजरिम है, उस पर सबसे पहला हक हमारा है। चलो देख लेंगे कि वो किसके हिस्से में आता है, मैंने बेपरवाही से कहा। इस वक्त हर नुक्ते पर जोर देना मुनासिब नहीं था। फिर तुम डैनी को कब तक निक के हवाले कर दोगे? सोबराज के लौट आने के बाद ही मैं इसका तयन कर सकूंगा। तुम फिक्र न करो, अब हमारे पास एक दूसरे के मोबाइल फोन नंबर भी हैं। अगला प्रोग्राम हम आपस में तय कर लेंगे, निक ने इत्मीनान दिलाया। चाहने से पहले मैं ये जरूर बता दूं कि आज मैं खाली हाथ और अकेला यहाँ आया था। तुम्हारी ड्रामाई हरकत से मुझे सख्त मायूसी हुई है। मैं डैनी को पूरे बंदोबस्त के साथ लाऊंगा ताकि तुम लोग मेरे साथ कोई चाल न चल सको। पूरी इनामी रकम $100 के पुराने नोटों की गड्डियों की सूरत में मिलनी चाहिए। मैं नए या छोटे नोट कबूल नहीं करूंगा। तुम बेफिक्र रहो, निक ने दोस्ताना अंदाज में मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा। डैनी के मामले में हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। इनामी रकम के बारे में हम बहुत संजीदा हैं। मैं पूरी रकम तुम्हारी मतलूबा मालियत के पुराने नोटों की सूरत में लेकर आऊंगा। सुनो, मैंने निक के साथी का बाजू सख्ती से थाम कर कहा, यह सब तय हो गया। सोबराज और डैनी वाला मामला अब तय समझो। इससे आगे तुम्हें खुली छूट हासिल है कि जब चाहो अपने दिल के अरमान निकाले ना। तुम हमेशा मुझे मुस्तअद पाओगे। उसने बाएं हाथ से मेरा हाथ अपने बाजू पर से हटाते हुए कहा, हम ठंडे दिमाग से बहुत सोच समझ कर फैसला करने वाले लोग हैं। जज्बात की रूह में बहकर काम के किसी आदमी को बिला वजह जाया नहीं करते। एक बच्चे की वलादत 8-9 महीने में होती है। वो बरसों में पल बढ़कर तजर्बा हासिल करता है और किसी काम के काबिल होता है। 25-30 या 40 बरस की इस रियाजत को मैं पल भर में बर्बाद करने का कायल नहीं हूँ। तुमसे मुझे कोई पुरखाश नहीं है। इस मर्तबा चंद घंटों के लिए कराची आया हूँ। कुछ अरसे बाद जरा फुर्सत से आऊंगा। शायद इस वक्त तक तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। मैं भले वक्त का इंतजार करूंगा। बस ये बात ध्यान में रखना कि तुम फिलहाल हमारे दोस्त नहीं बनते तो ना बनो, लेकिन बिला वजह दुश्मनी मोल न लेना। हम अपने दुश्मनों और गद्दारों से यकसा सलूक करने की आदी हैं। इसका सबूत तुम्हें सोबराज के अंजाम से मिल जाएगा। मैं दिल में उसकी मतानत और बुर्तबारी का कायल हो गया। काम के आदमियों के बारे में उसकी सोच मुस्बत और ज्यादा मंतकी थी। उसने मेरी पसलियों से आहिनी नाल लगाकर जो छिछोरी हरकत की थी, खुद अपनी गुफ्तगू से उसका अजाला कर दिया था। वो मेरे साथ अपना कोई खेल खेल रहे थे। मैं उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था। मैंने इस मुलाकात के लिए निक के इज़्तिराब का अंदाजा लगाकर अपनी मसरूफियत का उज़र पेश किया था, जिसका हवाला उसका साथी भी दे चुका था। इनसे होने वाली गुफ्तगू एक समझौते तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद मेरा वहां रुकना बेजवाज था। मैंने उन दोनों से रुखसत होने की इजाजत चाही तो निक के अफसर के होंठों पर इतनी गहरी मुस्कुराहट तैर गई कि होंठों के दरमियान उसके खफीफ से दांत चमकते हुए नजर आने लगे। मुझे हैरत है कि सोबराज बैंकॉक में है, फिर भी तुम बहुत मसरूफ हो, उसने धीमी आवाज में कहा। STF सिर्फ सोबराज की सरकोबी के लिए वजूद में नहीं आई थी। हमें बहुत से दूसरे काम भी करना होते हैं। मैंने इस मुलाकात के लिए बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है। अब मुझे कहीं और पहुंचना है। मैंने सबाट लहजे में कहा और मुसाफिर के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मैं इन दोनों से पहले अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से रवाना हो गया। इस मुलाकात के बारे में मेरा यह अंदाजा दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आया था कि निक मुझे एक मोतबर गवाह की हैसियत में अपने अफसर से मिलवाना चाह रहा था। इस मुलाकात में उसके सिवा कोई खास बात नहीं हुई थी कि मेरे जरिए निक ने उसे यह बावर कराने की कोशिश की थी कि वो बस 2-4 रोज में डैनी को पकड़ने वाला था। मुकर्रर मुद्दत में अपना हदफ हासिल न कर सकने की बिना पर निक के पाकिस्तान से तबादले के अहकाम जारी हो चुके थे। मिशन की तकमील से पहले होने वाला वो तबादला निक के लिए तौहीन अमेज था। उसने इन अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना पूरा जोर सर्फ किया हुआ था।
आसार कराइन ये बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में रुकने में कामयाब हो जाएगा। यह अजीबोगरीब और दिलचस्प सूरत हाल थी। इन दिनों मैंने 2 रूप अपनाए हुए थे। कभी मैं डैनी बनकर अपने दुश्मनों को धमका रहा था तो कभी कर्नल दावर के भेष में इन्हें जुल दे रहा था। मैं सोबराज और निक से इन दोनों हैसियतों में बात करता था। ये लुत्फ की बात थी कि सोबराज ने पाकिस्तान लौटने के लिए डैनी से समझौता कर लिया था और निक हार्वे ने डैनी को हासिल करने के लिए कर्नल दावर पर भरोसा किया हुआ था। मेरी हिकमत अमली के बिना पर इन दोनों में से किसी को शुबा नहीं हो सका कि वो दोनों नाम एक ही थे। मुझे अपनी गाड़ी के अकबनुमा आईने में BMW के हेडलैम्प्स रोशन और फिर मुतहर्रिक होते हुए नजर आए। इस वक्त तक STF वालों की डीजल पिकअप दोबारा नजर नहीं आई थी। निक की गाड़ी नई और बहुत शानदार थी। जरा सी देर में वो मुझसे आगे निकलती चली गई। मुझे इनका मुकाबला मकसूद नहीं था। मैं सिर्फ ये यकीन कर लेना चाहता था कि मेरे बाद वो दोनों इस इलाके में इधर उधर भटकने की बजाय वापस जा चुके थे। मैं इन ख्यालात में गलताओं पेचा ड्राइविंग में मुनहमिक था कि अचानक मेरे मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। मुबारक हो, तुम्हारी और इनकी मुलाकात खैर खूबी से निमट गई। बटन दबाते ही मेरे कान में वीरा की चहकती हुई आवाज गूंजी। मुबारकबाद तुम घर पर भी दे सकती थी, इस वक्त फोन करना जरूरी नहीं था, मैंने खुशदिली से कहा। बस मुझसे सब्र नहीं हो सका। मेरे फोन से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है कि तवज्जो के जरूरी इर्तिकाज करिए। ड्राइविंग के दौरान में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। कहा तो बहुत कुछ जाता है, हम इनमें से कितनी बातों पर अमल करते हैं? यह बताओ कि उस खोसट ने तुम्हें क्यों बुलाया था? मेरा अंदाजा दुरुस्त था। निक का तबादला बिल्कुल नजदीक आ चुका था और इसलिए वो मुझसे ये बारगेनिंग कर रहा था ताकि वो अपने अफसर से मुझे मिलवा सके और उसका अफसर उससे मुतमईन हो सके ताकि उसका तबादला रोका जा सके। मैंने इस फिक्रे के साथ ही अपना तजिया दोहरा दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई। वीरा की आवाज से बेअतबारी मुतरश्शिह थी। निक को तुमसे गवाही दिलवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो FBI का एक सीनियर और मोतबर अफसर है। उसकी कही हुई बातों पर किसी और की तायद की जरूरत नहीं पेश आ सकती थी। ये कोई और ही चक्कर था। इस वक्त तक मैंने वाकयात की रवानी में डूबकर इस नुक्ते पर ज्यादा मगज सोजी नहीं की थी। वीरा ने वो नुक्ता उठाया तो मुझे उसका एतराज वजनी महसूस हुआ। इसकी ये बात 100% दुरुस्त थी कि निक हार्वे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक पुराना और जिम्मेदार अफसर था। जब तक वो अपने महकमे की सर्विस में था उसे अपने किसी बयान की तायद के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं थी। उसके छोटे और बड़े इसके एक एक लफ्ज पर एतबार करते होंगे। दुराने मुलाजमत किसी का तबादला होना ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं हो सकता था कि उसकी साख खत्म हो जाती। जब तक निक अपने ओहदे पर बहाल था और अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा था वो बाहर के किसी आदमी की शहादत का मोहताज नहीं हो सकता था। तुम्हारी दानिश में क्या चक्कर हो सकता है? मैंने वीरा से सवाल किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस मुलाकात के मकसद के बारे में तुम्हारा अंदाजा गलत है। वो दोनों तुमसे किसी बड़े और अहम मकसद के लिए मिले हैं। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, मैंने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया। निक किसी सरसरी या सती मकसद के लिए इतना बखेड़ा नहीं फैला सकता था। मुझसे मेरी शराइत के मुताबिक एक खुली और इंतहाई खतरनाक जगह पर मुलाकात करके इन्होंने बहुत हौसले और बेखौफी का सबूत दिया है। एक छोटी सी बात के लिए वो दोनों इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मैं भी यही कह रही थी। मेरे ज़हन में जो कुछ आया वो मैंने बर्जस्ता कह डाला। इससे आगे सोचना समझना तुम्हारा काम है। मैं उलझन में पड़ गया हूं, मैंने फिक्रमंदी से कहा। ज्यादा उलझना बेकार है, घर पर सब मिलकर बैठेंगे तो कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी। इस वक्त ये बताओ कि तुमसे बात करते करते वो नया पंछी अचानक तुमसे चिपक कर क्यों खड़ा हो गया था? उसे अचानक वो सवाल करके मुझे चौंका दिया। हम अंधेरे में थे। हैरत है कि तुमने ये बात भी नोट कर ली। मालूम होता है कि STF में इंफ्रारेड दूरबीनों की फरावानी है। मुझे फरावानी का इल्म नहीं, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि अव्वल खान की गाड़ी में हंगामी जरूरत की हर चीज मौजूद होती है। गाड़ी में 2 दूरबीनें थीं, एक मेरे और दूसरी अव्वल खान के पास थी। इसे अचानक तुम पर लपकते हुए देखकर हमारे दिल उछल कर हल्क में आ गए थे। मुझे शुबा हुआ था कि वो तुम पर हमला आवर हो रहा है। अव्वल खान की क्या राय थी? मैंने सवाल किया। उसे आखिर तक यकीन था कि उसने तुम्हें गन पॉइंट पर ले लिया था, इस तरह तुम्हें अगवा करना चाह रहा था। आखिर में तुम उनसे अलग होकर रवाना हुए तो हमारी जान में जान आई थी, वरना अव्वल खान ने रास्ते में BMW से अपनी लैंड रोवर टकरा कर इनका मुकाबला करने और तुम्हें छुड़ाने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी थी। अगवा भी इस मुलाकात का एक मकसद हो सकता था, मैंने ख्याल जाहिर किया। वो तुम्हें छोड़ गए, इससे जाहिर होता है कि इनका यह मकसद नहीं था। आखिर वो तुम्हारी तरफ क्यों लपका था? अव्वल खान का अंदाजा दुरुस्त था। मुझे अगवा नहीं किया गया, लेकिन निक का साथी मुझे मेरे अगवा का ट्रेलर दिखाकर यह बताना चाह रहा था कि मैंने इन लोगों के साथ मुफाहमाना रवैया इख्तियार न किया तो मेरे साथ ऐसा कोई पुरतशद्दुद वाकया भी रुनमा हो सकता है। वो तुमसे क्या चाह रहे हैं? वीरा का लहजा तजस्सुस समेज हो गया। वही पुरानी बातें हैं, अब मैं हर बात फोन पर नहीं बता सकता। मैं शराय फैसल पर मुड़ने वाला हूँ।
इस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, गाड़ी संभालने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। मैंने इसका जवाब सुने बगैर वो कॉल मुनक़ता करके मोबाइल फोन अपनी गोद में डाला और मोड़ से गाड़ी शाहराह फैसल पर घुमा ली। वीरा ने मुझसे दुराने गुफ्तगू में कोई खास बात नहीं की थी, लेकिन निक की मुलाकात के मकासद पर अपने शुबे का इजहार करके मेरे जहन में हलचल सी मचा दी थी। मेरी निगाहें सड़क पर रवां ट्रैफिक की भीड़ पर मरकूज थी, मगर मेरा जहन इसी गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ था। निक ने अपने तौर पर इस मुलाकात के किसी खास मकसद का तयन नहीं किया था। बस उसका इतना इसरार था कि उसका एक आला अफसर वर्जीनिया से दिल्ली चाहते हुए चंद घंटों के ट्रांजिट पर कराची में रुक रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जरा सी देर के लिए मुझे अपने उस अफसर से मिलवाते। इस मुलाकात के मुहर्रिक का अंदाजा मेरा अपना था। मैंने शायद इस बात को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी हुई थी कि अमेरिका से निक के तबादले के अहकाम जारी हो चुके थे। इब्तदाई तौर पर मैं यही समझ सका था कि निक मुझे कर्नल तावर के रूप में अपने अफसर से मिलवाकर अपने तबादले के अहकाम को इल्तवा में टालना चाह रहा है। वीरा ने मेरे इस अंदाजे से इख्तलाफ करके मुझे किसी और समत में सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं वीरा के इख्तलाफी मुवक्कफ का कायल हो चुका था, लेकिन मुझे फौरी तौर पर कोई दूसरी राह नजर नहीं आ रही थी। भटकते भटकते मेरा जहन बहुत दूर चला गया और फिर एक नई बात ने मेरे जहन में सर उभारा। मैं काफी दिनों से इन लोगों के साथ कर्नल दावर का चक्कर चला रहा था। इनके नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी इजलासों में मेरी मुलाकातें हो चुकी थीं। FBI का जॉन एशकोफ मेरी मुदल्लल गुफ्तगू और मजबूरी कारकर्दगी से इतना मुतासर हुआ था कि उसके महकमे ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से मेरी यानी कर्नल दावर की खिदमात हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी थी और कर्नल दावर का सर्विस रिकॉर्ड मांग लिया था। इब्तिदा से इस लम्हे तक हम सब ये सोच कर खुश होते रहे कि अमरीकी कर्नल दावर की जबरदस्त कारकर्दगी से मरऊब होकर इसकी खिदमात हासिल करने के ख्वाह हैं। मैंने कई बार इनकी पेशकश को इनके सफ़ों में घुसने का बेहतरीन मौका तस्वुर किया, लेकिन वो शायद मेरी खाम ख्याली थी। FBI और CIA वालों के लिए अमरीका और दुनिया भर में बासलाहियत अफराद की कोई कमी नहीं थी। वो जिसे चाहते मुंह मांगे दामों पर खरीद सकते थे। इनके लिए कर्नल दावर का पीछा करना जरूरी नहीं था। इस किस्से में निक की एक ही दलील मजबूत थी कि वो हर मुल्क में अपने मकामी एजेंटों और मुखबरों की फील्ड फोर्स की रहनुमाई और सरबराही के लिए किसी मुमताज मकामी फर्द की खिदमात हासिल करने की पॉलिसी पर कारबंद रहते थे। इस नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करते ही मुझे एहसास होने लगा कि वो लोग फहमो फरासत से आरी नहीं थे। खुली आंखों और जागते हुए जहनों के साथ हर कदम उठाने के आदी थे। वो कर्नल दावर की जात के बारे में रश्क से ज्यादा रकाबत और तजस्सुस में मुब्तला थे। कर्नल दावर की तारीफ करके उन्होंने एक बहुत गहरी चाल चली थी और उसका सर्विस रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश कर डाली थी। अगर किसी भी तरह वो रिकॉर्ड उनकी तहवील में चला जाता तो वो बाल की खाल निकालने के फलसफे पर अमल करके जल्द या बादेर इस नतीजे पर पहुंच सकते थे कि कर्नल दावर कभी भी मुसल्ला अफवाज में नहीं रहा था और STF ने अपने किसी अहम अफसर की शिनाख्त छुपाने के लिए वो फर्ज किरदार तराशा हुआ था। ये इम्कान बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मेरे जहन में बर वक्त सर उभार चुका था और मैंने अव्वल खान के साथ यह तय कर लिया था कि अगर कभी कर्नल दावर का सर्विस रिकॉर्ड अमेरिका भेजने की मजबूरी दरपेश हुई तो आर्मी के बाज़ाब्ता रिकॉर्ड से ऐसे किसी रिटायर्ड अफसर के ख्वाहिश हासिल कर लिए जाएंगे जो नाम और ओहदे के लिहाज से कर्नल तावर ही हो। इस रिकॉर्ड में मेरी कोई पुरानी और मुबहम तस्वीर शामिल करके अमेरिकी एजेंसियों को ऐसा चक्कर दिया जा सकता था कि वो मरकर भी हकीकत का सुराग नहीं लगा सकते थे। STF हर आईनी और कानूनी पाबंदी से आज़ाद एक गैर दस्तावेजी तंजीम थी जिसमें सारा काम जुबानी चलता था। इस बुनियाद पर कर्नल दावर के सर्विस रिकॉर्ड की फराहमी का मसला शायद टल गया था, लेकिन अमेरिकी हुकाम कर्नल दावर के किरदार से पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। एक तरफ निक ने मुझे उलझाया हुआ था, मुझे कोड़ मगज और सहल पसंद समझ रहा था, लेकिन वो बहुत होशियारी और राजदारी के साथ कर्नल दावर की जात के बारे में अपना काम आगे बढ़ा रहा था। उसे मेरे मोबाइल फोन नंबर पर पहले राब्ते ही में ये जता दिया था कि नंबर हासिल करते ही उसने छानबीन की थी और ये मालूम कर लिया था कि फोन का अजराक कर्नल दावर के बजाय अव्वल खान के नाम पर हुआ है। इस वक्त तक मुझे निक के अज़ाइम पर कोई शुबा नहीं हुआ था, फिर भी मैंने होशियारी से बात संभाली थी। निक को मेरा यह उज़र तस्लीम कर लेना पड़ा था कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान में STF का कोई वजूद न होने की वजह से कहीं भी उसका नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हर सहूलत मकामी स्टेशन कमांडर के अपने नाम पर हासिल की जाती थी। STF के जेर इस्तेमाल तीनों मोबाइल फोन इसी वजह से अव्वल खान के नाम पर हासिल किए गए थे। FBI के लिए कर्नल दावर की पुरस्कार शख्सियत बहुत अहम थी। निक के अफसर आला के जहन में भी यह खौफ जागुज़ी रहा होगा कि कहीं निक किसी गलत आदमी के जाल में न फंस रहा हो। उसने अपने वतन से दिल्ली चाहते हुए कराची में रुक कर मुझसे मिलने का फैसला कर लिया।
اس کے لیے کرنل داور کی ذات اس لیے اہم تھی کہ وہ سوبراج کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا اور اسی کے ساتھ ڈینی کو قید کر لینے کا دعوے دار تھا۔ وہ محض فون پر بات کر کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کرنل داور پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے۔